السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. کل کیا کیا آپ سب نے پھر؟ ٹھیک. کل کیا کیا؟ میں نے 100 دفعہ یا حیوں یا قیوم پڑھا. ویری گڈ. اور باقی سب نے؟ باقی سب نے کچھ نہیں کیا؟ اور سورہ ناس کا ترجمہ کس نے یاد کیا؟ باجی میں نے. اور کس نے یاد کیا ہے؟ باجی میں نے ہاف یاد کیا. ٹھیک ہے. اور ایکٹیویٹی ہو گئی آپ کی کمپلیٹ سب کی؟ باجی نہیں، ہم لوگ اسکول گئے ہوئے تھے، ابھی آئے. ٹھیک. پھر آپ کمپلیٹ کر لیں. جی ابھی کلاس کے بات کروں گی. ٹھیک. پھر ہم آپ میں سے تو کسی نے بھی سورہ ناس نہیں یاد کی، اب ہم کیا کریں؟ بتائیں پھر اب ہم کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حلیمہ، آپ نے کل کیا کیا؟ میں جی میرے ساتھ پوچھ رہی ہیں. جی میں کچھ بھی نہیں کیا، کل روزہ تھا نا، پورے دن سو گئی تھی. 3 بجے اٹھی تھی، مما نے کہا آج کلاس نہیں ہے. جی. تو آپ نے کچھ جو ہم نے پڑھا تھا کل پرسوں، اس کی پرسوں اور اس سے پہلے وہ آپ نے یاد نہیں کیا؟ اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے کیسے پڑھیں گے؟ جی آمنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ بھی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ. آپ ہی میں سناؤں؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس
وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. ویری گڈ، شاباش. اور کافی میں نے خدیجہ نے اسکول بھی؟ میں یاد کیا ہے، جی میں نے اسکول میں ایسے یاد کیا ہے. ٹھیک، شاباش. اور جی مجھے صورت یاد ہے، ترجمہ یاد نہیں ہے. ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. اور خدیجہ کو بھی یاد ہے. تیجا کو شرم آ رہی ہے. شرمانے کی کیا بات ہے، آپ سنائیے. شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ بھی؟ الحمدللہ. آپ ہی سناؤ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. ویری گڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لوگوں اور جی شاباش. رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، سب لوگوں کا مالک. الہ الناس، لوگوں کا معبود. من شر الوسواس الخناس، لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے. شاباش، ماشاء اللہ. سب تو بہت اچھے بچے ہیں. اور کس کو یاد ہے؟ کون سنانا چاہتا ہے؟ آمنہ، آپ نے بھی بات کرنی ہے؟ نو آپی. ٹھیک، پھر ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے جیسے لاسٹ روزے کی تعریف پڑھی تھی اور روزے کی قرآن پاک سے دلیل پڑھی تھی. تو روزے کی تعریف میں کون بتائے گا کہ عربی زبان میں روزہ
روزے کے لیے کون سا ورڈ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ बाजी अरबी ज़बान में रोजे का वर्ड होता है सोम। शाबाश। और अब नेक्स्ट कौन बताएगा सोम के क्या मायने हैं? रुक जाना। रुक जाना। शाबाश। और हमने रोजे की तारीफ भी पढ़ी थी, याद है आप सबको? जी बाजी। जी बाजी। ठीक है, 1 2 3 के काउंट पे सब साथ पढ़ लीजिएगा। 1 2 3 स्टार्ट। सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक खाने पीने से बचाने का नाम रोजा है। वेरी गुड, शाबाश। आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे, आप लोगों ने तो इतनी जल्दी याद कर लिया उसको। यह हमने हमेशा याद रखना है, हमने भूलना नहीं है। आज हम आप सल्लम के फरमान मुबारक, हमने उस दिन आयत पढ़ी थी ना, आयत का तर्जुमा पढ़ा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक में रोजे के बारे में क्या फरमाते हैं। तो आज हम हदीस में देखेंगे रोजे की क्या फजीलत आई है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नारी कजुन्नति अहदिकुम मिनल क़िताल। यानी रोजा, देखें अब अरबी में लिखा है ना, हदीस मुबारक अरबी में थी तो उधर सोम सोम लफ्ज आया है। तो क्या फरमाया हमारे नबी ने, रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल होती है। हम ढाल से मुराद है हम अपने आप को फाइटिंग में जो शील्ड पहनते हैं ना, वो उसको ढाल कहते हैं। तो रोजा भी इसी तरह हमारी एक शील्ड बन जाता है। और किस चीज के लिए वो शील्ड बनता है, ढाल बनता है? जहन्नुम की आग से। तो रोजा हमें जहन्नुम की आग से बचाता है, जैसे हम किसी लड़ाई के लिए ढाल पहनते हैं, शील्ड लेते हैं। आप में से जो फाइटिंग के कार्टून्स या मूवीज देखते हैं, उन्होंने देखा होगा ना, एक उन्होंने जैकेट टाइप पहनी होती है लोहे की, जिरहा जिसको कहते हैं, वो शील्ड पहनी होती है, या फिर बॉडी सूट सब आगे हैं। तो इस तरह जो जिरा होती है उसको ढाल कहते हैं। तो रोजा भी हमारे लिए ढाल है। आप में से किस किस ने वो वाली देखे हैं, इर्तुगल का देखा है ना, वो तलवार से जब फाइटिंग कर रहे होते हैं तो उनके एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में एक शील्ड सी पकड़ी होती है, जिससे किसी का हमला रोकने के लिए वो आगे कर देते हैं फाइटिंग में। तो वो ही ढाल यहाँ भी मुराद है। तो रोजा ऐसे ही हमें जहन्नुम की आग से बचाता है, हमारे लिए ढाल बन जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने क्या सीखा आज कि रोजे की फजीलत क्या है, कि रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे हम में से कोई शख्स के पास किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। तो जो रोजा रखेगा तो रोजा उसके लिए ढाल बन जाएगा। आज हमने ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद करना है कि रोजा क्या है, रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है। मेरे साथ आपने अब दोहराना है, रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है। रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। आप इसको 1 2 3 के काउंट पे सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। सबको समझ आ गया ना ढाल से क्या चीज मुराद है? वो शील्ड जो हम जब फाइटिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको आगे कर देते हैं, या कि हमें तलवार से भी ना लगे, जख्म ना हो, और ना ही हमारे ऊपर अगर गन से फायर किया जा रहा है तो हम उससे भी बच जाएं। फिर से अब आपने 5 टाइम्स रिपीट करनी है हदीस, और इस तरह रिपीट करनी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। 1 2 3 स्टार्ट। रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। के ढाल हो। शाबाश। तो ये याद होगी आपको हदीस मुबारका। जी बाजी। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि रोजा हमारे ऊपर कब फर्ज हुआ। तो रोजा हमारे ऊपर फर्ज हुआ था हिजरत के बाद शाबान 2 हिजरी को, और वो किस जगह हुआ था? मदीना मुनव्वरा में। तो रोजे की डेट हमने कैसे याद करें कि रोजे कब फर्ज हुए, यानी अल्लाह ताला ने कब हुक्म नाजिल किया कि आप अब रोजा रखें। तो रमजान बाजी ये कौन सा वर्ड है? जी ये कौन सा वर्ड है? हिजरत। हिजरत का पता है ना आपको? जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ गए थे, और मक्का से मदीना क्यों गए थे, किसी को मालूम है? हिजरत के लिए। हिजरत के लिए तो गए थे, हिजरत की क्यों थी? अल्लाह के हुक्म से। शाबाश। और अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म क्यों दिया था? जी आपको मालूम होगा, सोचें और बताएं। कुफार के मजालिम से तंग आकर। शाबाश। हमने पढ़ा है ना, जो कुफारे मक्का थे, जैसे अबू जहल था, अबू लहब था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते थे। इनके साथ और कुफार भी थे, तो ये आपको तंग करते थे, बाकी मुसलमानों को भी तंग करते थे, अल्लाह ताला की इबादत से रोकते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने हिज्रत करने का हुक्म दिया। हिज्रत का मतलब होता है कि आप एक जगह छोड़कर अमन वाली जगह पर चले जाएं, यानी जहां पर आपको तकलीफ पहुंच रही है, जहाँ कुफार हैं, आप उस जगह को छोड़कर जहां पर अमन है, सलामती है, उस जगह पर चले जाएं। तो ये हिजरत है। फिर आप सल्लम पर जब अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दे दिया, तो आप सल्लम रात को छुप कर, वो आप जो कुफार थे वो आप सल्लम को नाउज़बिल्ला कत्ल करने की नीयत से घर के बाहर बैठे हुए थे ना, तो अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और वो आप सल्लम को निकलता हुआ देख ही नहीं पाए। फिर आप सल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए, वहां से उनको लेकर कहाँ गए थे? मदीना। में। मदीना तो गए थे, मदीना से पहले भी कहीं रुके थे, वो कहाँ रुके थे? घर जी जी गए थे। गार हिरा में। गारे सोर में। इसका क्या मतलब है? गारे सोर, गार का यानी जैसे कोई पहाड़ होता है ना, उसमें सुराख करके अंदर जगह बनाई होती है छोटी सी, या खुद ही कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से उनमें जगह बन जाती है, तो वो एक सुराख होता है, उसमें छुप गए थे। पहाड़ों में होता है, जैसे गारे हीरा हम पिक्चर्स में देखी है ना, कि वो कैसे छोटी सी जगह के अंदर जाते हैं लोग और सैर कर कर आते हैं कि यहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। तो इसी तरह गारे सोर भी एक गार थी। तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से निकले थे, तो 3 दिन गारे सोर में क्याम किया था, ठहरे रहे थे। फिर वहां से मदीना की तरफ गए थे। तो इसलिए हिजरत के बाद जब आपने हिजरत की, ये हिजरी कहाँ से आई है? ये हिजरत ही से निकली है, यानी हिजरत के बाद ये हिजरी का लफ्ज आ गया कि मक्का से मदीना हिजरत की, उसके बाद साल का जो आगाज हुआ उसको हिजरी से मंसूब कर दिया, यानी नाम दे दिया गया। तो शाबान 2 हिजरी को मदीना में हमारे ऊपर रोजे फर्ज हुए थे। कब रोजे फर्ज हुए? शाबान 2 हिजरी को। याद हो जाएगा ना आपको कि रमजान मुबारक के रोजे
हिजरत के बाद शाबान 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। अब ये देखिए, इसमें कितनी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। रोजादार जो है ना, उसके 5 खुसूसियात लिखी हैं, अल्लाह ताला ने बताई हैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से। यानी हमें बताया गया कि अगर रोजादार रोजा रखता है ना, तो उसको ये 5 इनामात मिलते हैं। और 5 इनामात कैसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को बतौर खास रमजान में, यानी खास कर रमजान के अंदर 5 ऐसी चीजें अता की जाती हैं जो पहले किसी भी उम्मत को अता नहीं हुई। सबसे पहले है अल्लाह ताला के यहाँ रोजेदार के मुंह की खुशबू की जो बू है ना, वो मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। मुश्क जो है वो एक खुशबू होती है, उसको कहते हैं, एक खुशबू का नाम है। जैसे परफ्यूम और इतर होता है ना, ऐसे ही मुश्क भी एक खुशबू का नाम है। तो अल्लाह ताला को रोजेदार के मुंह से जो बू आती है, वो उस खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। इसी तरह रोजेदारों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला दरिया की मछलियां इफ्तारी तक दुआ करती रहती हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। यानी मछलियों को भी अल्लाह ताला रोजेदारों के लिए दुआ करने के काम में लगा देते हैं। फिर तीसरी खसूसियत हमारी यानी रोजेदारों की क्या है कि रोजेदारों के लिए रोजाना जन्नत को सजाया जाता है और उसको मुज़य्यन और खूबसूरत किया जाता है। यानी रोज जन्नत हमारे लिए सजती है, प्यारी होती है। अल्लाह ताला जन्नत से क्या फरमाते हैं कि बहुत जल्द मेरे नेक बंदे मुशक्कत यानी तकलीफ को दूर करके तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। यानी जन्नत को सजाते हैं ना जब अल्लाह ताला, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आते तो मम्मा सफाई करती हैं, सेटिंग वगैरह करती हैं, तो इसी तरह रमजान में भी रोजेदार के लिए अल्लाह ताला रोजाना जन्नत को सजाते हैं, तैयार करते हैं और उसको कहते हैं कि बहुत जल्द मेरे नेक बंदे तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। और फिर रोजेदार की अगली खसूसियत ये है कि इसमें जो शयातीन होते हैं ना, इनको बांध दिया जाता है और रमजान में बुराइयों इन बुराइयों तक नहीं पहुंच सकते जिन बुराइयों में रमजान के अलावा पहुंच जाते थे। यानी हम गुनाह नहीं ना रमजान में ज्यादा करते, सब नेक बन जाते हैं, अल्लाह ताला के को राजी करने वाले अमाल करते हैं, नेकियां करते हैं। तो शयातीन जो गुनाह की तरफ हमें लेकर जाते हैं, वो बांध दिए जाते हैं, तो फिर इंसान को वो बुराई की तरफ नहीं लेकर आ सकते। और इसके बाद आखिरी खसूसियत ये है कि जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है ना, तो उसमें रोजेदारों की मगफिरत का फैसला किया जाता है। तो ये 5 खसूसियात है रोजेदार की। तो सहाबा कराम ने जब ये सुनी ना, तो उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये मगफिरत व या शब कदर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर दुनिया यानी दुनिया का जो तरीका है ना, वो यही है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दी जाती है। तो अल्लाह ताला भी रमजान मुबारक की आखिरी रात, जिसे चांद रात का कहते हैं, उस रात हमारी मुशक्कत की, हमारी नेकियों की हमें मजदूरी यानी इनाम देते हैं। वो किस तरह मिलता है? मगफिरत करके, मगफिरत के जरिए रोजेदार की तमाम नेकियों का, तमाम रोजे में रमजान मुबारक में की जाने वाली नेकियों, इबादत का इनाम चांद रात को अल्लाह ताला देते हैं। तो हमने क्या क्या खसूसियात पढ़ी? रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। रोजेदार के लिए दरिया की मछलियां इफ्तार तक दुआ करती रहती हैं। रोजेदार के लिए जन्नत को सजाया जाता है। रोजे में शयातीन को बांध दिया जाता है और रमजान में रोजदार की मगफिरत का फैसला आखिरी रात को हो जाता है। तो कितनी ज्यादा अच्छी खसूसियात है। अगर हम रोजा रखेंगे तो ये सारी खसूसियात, ये इनामात हमें भी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। समझ आ गया आपको ये सब? जी आप भी। कोई क्वेश्चन इसके बारे में, कोई पॉइंट ना समझ आया हो? ठीक है, अब हम सुन्नत की तरफ आते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत में आज हम क्या पढ़ेंगे? मिसवाक के बारे में।
क्या आपको मिसवाक करने का सुन्नत तरीका मालूम है सबको? नहीं जी मालूम? मुझे पता तो सुन्नत तरीका है ये मिसवाक मिसवाक करना सुन्नत अमल है। मिसवाक करने से पहले मिसवाक को अच्छे से चबाना चाहिए और मिसवाक पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ की करनी चाहिए। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तय्यबा नसीब होता है। जी, शाबाश। तो देखें मिसवाक के कितने ज्यादा फवाइद हैं कि हम मिसवाक करेंगे सुन्नत का सवाब मिलेगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे। फिर मिसवाक करने का तरीका क्या है? पहले मिसवाक लेकर उसको अपने दांत के नीचे प्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए, उसको चबाना चाहिए, फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे पहले दाईं तरफ यानी राइट साइड पर फेरें, फिर बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर करनी चाहिए। जैसे हम ब्रश करते हैं पहले राइट साइड पे और फिर लेफ्ट को जाते हैं ना, इसी तरह मिसवाक भी पहले राइट फिर लेफ्ट साइड पे करनी चाहिए। और मिसवाक करने का सबसे अहम और अच्छा फायदा पता है क्या है? मौत के वक्त यानी जब हमें हमारे ऊपर मौत आती है, हम मौत के करीब होते हैं, तो हमें अल्लाह ताला कलमा तय्यबा नसीब करते हैं। यानी हमने देखा है ना, कोई रात को सोया तो सुबह नहीं उठता, इसी तरह किसी को अचानक मौत आ जाती है एक्सीडेंट में, तो जो मिसवाक करता है ना उसको तब तक मौत नहीं आती जब तक वो कलमा तय्यबा ना पढ़ ले। कलमा तय्यबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब तक मिसवाक करने वाले को सबसे प्यारा इनाम यही मिलता है कि वो मौत के वक्त उसको कलमा नसीब होता है। और कलमा नसीब होने की फजीलत हमें पता है क्या मालूम है? कि जिस भी इंसान की आखिरी कलाम यानी आखिरी बात जिंदगी की ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, तो वो फौरन जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो हम सब जन्नत में हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं ना, तो हमने मिसवाक करनी है ताकि हमें हमारी आखिरी बात, हमारी आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। तो अब सब इंशाल्लाह मिसवाक करेंगे ना? जी मैम जी इंशाल्लाह सबने अपने लिए मिसवाक मामा से लेकर यूज किया करनी है पूरा रमजान, और फिर रमजान के बाद भी जब नमाज के लिए वुजू करने लगे आप मिसवाक करें। करेंगे सब ऐसे? जी शाबाश। हाँ जी, अब आपका फेवरेट टाइम आ गया है एक्टिविटी का। कौन कौन एक्टिविटी माँ के जी लिए एक आज मिनट तैयार? मैं कॉपी ले लूँ। जी, आज की एक्टिविटी मजे की भी है और थोड़ी सी टफ भी है, लेकिन आप लोगों को मजा आएगा ड्रॉ करके।
मुश्किल तो नहीं लग रही, इजी है। मैम जी आप व्हाट्सएप पे ऐसी ऐसी भेजेंगी फोटो, वो यूट्यूब में नहीं, उस पे जी जी मैं भेज वीडियो जी इंशाल्लाह। और ये जैसे इन्होंने डिजाइन किया है ना कुरान पाक के ऊपर, आप अल कुरान लिखकर खुद से भी कोई डिजाइन छोटा सा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि हमें एक चीज का कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि ये ड्रॉ कैसे होना है, फिर डिजाइन और कलर हम अपनी पसंद से भी कर सकते हैं। और आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट की जगह आप इसमें कलर यूज कर सकते हैं, कोई प्यारे से कलरफुल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबको ये समझ आ गई? थोड़ी सी जी टफ मुझे है नहीं आएगी, जी, मुझे नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल तो कुछ नहीं होता, हमने तो प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे आएगा ना, सीखेंगे तो हमें करना आएगा ना। तो आप वीडियो 2 दफा देखें, उसके बाद साथ साथ ड्रॉ करते जाएं, देखें आपसे कैसे बनेगा, और फिर आप खुश होंगे कि मैंने कर लिया। किसी भी काम को ये नहीं कहना कि ये मुश्किल है, बल्कि ये कहें कि मेरा अल्लाह ताला है ना, मेरा रब है, वो मेरे लिए इस मुश्किल को आसान फरमा देंगे। तो देखें फिर कैसे अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से निकाल देते हैं, उस मुश्किल को आपके लिए आसान कर देंगे। आप जब ये देखें, अब इन्होंने स्टेप्स बता दिए ना कि स्केल से पहले कुरान पाक को यूं ड्रॉ करें, उसके बाद बाकी की रेहल बना दें। और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपने एज इट इज इसी की कॉपी करनी है, आप अपने अंदाज से भी बना सकते हैं। और किसको समझ नहीं आई या मुश्किल लग रही है? और अगर हेल्प भी आप लेना चाहें तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। मैम जी मैं इसकी जगह कोई और चीज बना के भेजूंगी। ये तो फिर चीटिंग हो गई ना, कि हम सीख से मैं दूसरी चीज बगैर बना ट्राई लूंगी। किए आप कैसे कह सकती हैं? क्या पता आप कोशिश करें और आपको आ जाए। एक दफा कोशिश तो करें, अपने आप पर भरोसा रखें, फिर देखना आपसे बन जाएगा इंशाल्लाह। बाजी बहुत इजी है, जी बहुत इजी है। इजी है, फिर अब आपने ड्रॉ करके भेजना है इंशाल्लाह। मैं ये वीडियो आपको भेजूंगी, तो आप इसको देखकर फिर ड्रॉ कर लेंगे इजी।
اب ہم کیا کریں؟ اسٹوری سے پہلے سورت کا بھی تو ٹائم ہوتا ہے نا. آج ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ ناس کا پڑھا تھا, آج ہم سورہ فلق کا پڑھیں گے. تو ہم نے صرف 2 آیات کا ہی یاد کرنا ہے سورہ فلق کا, کیونکہ آپ کو بھی سورہ ناس کی یاد نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فلق میں کس چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں, ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق صبح کو پیدا کرنے والے کی, بربی رب کی, الفلق صبح کے پیدا کرنے والے, اب صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں, من شر ما خلق اس کی مخلوقات کے شر سے. اللہ تعالیٰ آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق صبح کے پیدا کرنے والے رب کی, یعنی جس رب نے صبح کو پیدا کیا ہے اس رب کی پناہ میں آتا ہوں. کس چیز کے پناہ میں آنا ہے؟ من شر ما خلق اس کی مخلوقات کے شر سے, یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان میں اگر کوئی برائی ہے, کوئی شر ہے, تو میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. میرے ساتھ دہرائیں. کل آپ کہہ دیجئے, قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں, اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں برب الفلق صبح کے پیدا کرنے والے رب کی, برب الفلق صبح کے پیدا کرنے والے کی. کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں, کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتی ہوں, من شر ما خلق اس کی مخلوقات کے شر سے, من شر ما خلق اس کے مخلوقات کے شر سے. تو صرف 2 آیات کا ہی یاد کرنا ہے. اور سورہ ناس کا کر لیں گے نا آپ؟ جی باجی انشاءاللہ. جی قل آپ کہہ دیجئے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں, من شر ما خلق اس کی مخلوقات کے شر سے. تو یہ 2 آیات کا ترجمہ اور آیات آپ کو یاد ہونی چاہیے. ویسے سورہ فلق کس کس کو یاد ہے زبانی؟ آتی مجھے باجی مجھے یاد ہے. کیا بات. اور کس کس کو یاد ہے؟ ارے 2 آیات کا ترجمہ اپنی یاد کرنا ہے, سورہ ناس کا بھی میں نے کل انشاءاللہ سننا ہے. اب ہم اپنی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہم کیا لرن کریں گے, کیا یاد کریں گے, اسٹوری میں ہمیں کیا سبق ملے گا. تو یہ اسٹوری ہے 2 لڑکوں کی یا ایک کلاس کے لڑکوں کی, جس میں وہ کرکٹ کا میچ کھیلنے جاتے ہیں. زید نے کلاس کے لڑکوں کے ساتھ مل کر کرکٹ میچ کا پروگرام بنایا. گھر کے پاس سب نا جو ٹائم کا فکس تھا اس پر پہنچ گئے, اور ٹاس کرنے کے بعد انہوں نے گیم کا آغاز کر دیا.
पहले बैटिंग जो है वो जैद के हिस्से में और बॉलिंग मुस्तफा के हिस्से में आई। मुस्तफा ने जैसे ही बॉल करवाई तो जैद के बैट को लगकर सीधा वो विकेट को जा लगी। बॉल का विकेट से टकराना ही था कि हर एक ने सीटी बजाना और आउट आउट के नारे लगाना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ जैद साहब का मुंह बन गया। उसने गुस्से में इस जोर से मुस्तफा की टांग पर बैट मारा कि वो दर्द से रोता हुआ जमीन पर बैठ गया। जब सबने बोला और जैद को रोकना चाहा तो जैद खुद ही गुस्सा करता हुआ जोर से दरवाजा बंद करके घर में दाखिल हो गया। उमर भाई जो जैद की आवाज सुनकर बाहर आ रहे थे, तेजी से आता हुआ जैद बेध्यानी में उनसे भी टकरा गया। फिर जैद ने कहा उमर भाई से माफी मांगते हुए, माफ कीजिएगा भाई, और बहुत तेजी से जाने लगा। उमर भाई ने जैद का हाथ पकड़ा और उसे वहीं रोका और कहा, 1 मिनट, मेरा जवाब तो सुनते जाओ। इतनी जल्दी किस बात की है? इस कदर गुस्सा क्यों है? उमर भाई ने जैद के चेहरे के जो हालात थे, तासुरात थे, देखकर आराम से पूछा। तो जैद ने अपने अंदर का जो सारा गुस्सा था वो निकालना शुरू कर दिया। जब जैद खामोश हुआ तो उमर भाई जैद को लेकर सहन में एक तरफ बैठ गए और उमर भाई इसको क्या कहने लगे, छोटे, तुमने मुस्तफा को बैट से क्यों मारा? क्योंकि उसकी बॉल से तुम आउट हुए, मगर क्या इससे कोई फायदा तुम्हें हासिल हुआ? फायदा कैसा? उसने जानबूझकर मेरी रेडी होने से पहले ही बॉल फेंकी थी, तो बस मैंने इसलिए उसे सबक सिखा दिया। जैद ने मुंह बनाकर जवाब दिया। उमर भाई ने कहा, आपको मालूम है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अल मुस्लिमु मन सालिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। उमर भाई हदीस पढ़कर खामोश हुए तो आगे से जैद ने कहा, भाई मैं समझा नहीं। तो भाई ने समझाया, देखो, इसका मतलब ये है कि एक अच्छा मुसलमान वही होता है जो अपने दूसरे मुसलमान भाई बहनों को न अपनी जुबान से बुरा भला कहकर तकलीफ देता है और ना ही अपने हाथ से उसे मारता और पीटता है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखे। तो भाई ने जैद को कितनी आसान तरीके से हदीस समझाई। भाई तो आगे से जैद ने मासूमियत से रोने वाली सूरत बनाकर सवाल किया, मैंने तो मुस्तफा को हाथ से मारा और सबको बुरा भला भी कह दिया, लड़ाई भी की, तो क्या आपका छोटा भाई अच्छा नहीं है? तो उमर भाई ने उसको कहा, नहीं, मेरा छोटा भाई अच्छा है और गलती तो सबसे हो जाती है, मगर सबसे अच्छा वो होता है जो अपनी गलती मानकर माफी मांग ले और आइंदा वो गलती ना करे। उमर भाई ने जैद को प्यार किया और जैद बगैर कुछ कहे फौरन बाहर चला गया, जहां सब लड़के मुस्तफा को एक तरफ बिठाकर उसके पाँव को दबा रहे थे। जैद ने जल्दी से जाकर मुस्तफा और बाकी लड़कों से माफी मांगी और आइंदा ऐसे गुस्सा ना करने का वादा किया, क्योंकि अच्छे बच्चे तो सबका ख्याल रखते हैं। तो आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा? कामिल मोमिन कौन होता है? कामिल मुसलमान कौन होता है? वो कौन होता है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और कैसे महफूज रहेंगे? जब हमारी किसी से लड़ाई हो, हमें गुस्सा आए, तो हम गुस्से पर काबू पा लें, हाथ या जुबान से किसी को भी तकलीफ ना दें, तो ही हम कामिल मोमिन बन जाएंगे। यानी आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हुई है, आप उसको मारेंगे नहीं, ना ही बुरा भला कहेंगे, गुस्से को पी जाएंगे। ऐसे ही करेंगे सब। इंशाल्लाह। तुमने जी आज की दादी, स्टोरी से क्या इंशाल्लाह। सीखा? कामिल कौन होता है? तो कौन होता है कामिल? जो गुस्से के वक्त गुस्से को पी जाए और किसी को बुरा भला ना करे और ना और इसको मारे। कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें।
سب اس پر عمل کریں گے؟ جی باجی انشاءاللہ. جیسے آمنہ اگر بڑی ہے اور وہ ختیجہ چھوٹی ہے تو آمنہ جو ہے وہ ختیجہ کو نہیں مارے گی. اگر ختیجہ نے غلطی کی ہے پیار سے سمجھائے گی. اگر ختیجہ نے کوئی چیز آمنہ کی لے لی ہے, اٹھا لی بغیر پوچھے, تو آمنہ غصے میں اس کو برا بھلا نہیں بولے گی بلکہ آرام سے بات کرے گی. اور چھوٹوں کو بھی مارنا بری بات ہے, وہ بھی تو مسلمان ہے نا, تو ان کو بھی ہم نے مارنا نہیں ہے, نہ ہی بڑوں کو مارنا ہے, نہ ہی اپنے فرینڈس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. ہوتا ہے نا کہ ہم لڑائی میں اکثر فائٹنگ ہو جاتی ہے فرینڈس کے ساتھ, تو ہم یا تھپڑ مار دیتے ہیں, بال کھینچ دیتے ہیں, بوائز مکے بھی مارتے ہیں, نیچے گرا دیتے ہیں, اور لڑائی زبان سے بھی ہم بہت برا بول جاتے ہیں, گالی دے دیتے ہیں, یا پھر کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جس سے اگلے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو پھر ہم کامل تو نہیں نہ ہوئے. تو ہم نے کامل بننے کے لیے کیا کرنا ہے, اپنی زبان اور ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے, تاکہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اور اگر ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی تو پھر ہمارا جنت میں جانے کا راستہ کیسے آسان ہوگا. جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ کامل مومن, کامل مسلمان بنتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, عمل کریں گے اس حدیث پر اور خود کو اچھا بچہ بنائیں گے جی باجی. انشاءاللہ. اور یہ جو ہم سٹوریز میں لیسن ہمیں مل رہا ہے, جو ہم سبق سیکھتے ہیں, یہ ہماری ساری زندگی کے لیے ہے. یہ نہیں کہ بس آپ چھوٹے ہیں تو ابھی کرنا ہے, بلکہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے. بڑے ہو کر بھی کوئی آپ کو برا بھلا کہے یا کوئی کسی سے فائٹنگ ہو تو بھی آپ نے کسی کو مارنا یا گالی وغیرہ زبان سے کچھ نہیں کہنا. آج کا ہمارا لیسن یہی تھا. کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے, پھر ہم کلاس فنش کر دیں. اور سب نے جو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں, روزے کے لیے جو فضیلت کی حدیث تھی وہ بھی یاد کرنی ہے, اور سورہ فلق کی 2 آیات کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے, سورہ ناس کا بھی, اور کیا کرنا ہے, روزے کی فضیلت, سورۃ الفلق, اور سورہ ناس کا ترجمہ. کہ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنے والدین کا, اپنے بڑوں کا ادب بھی کرتے رہنا ہے. اور جو ہم نے سنتیں یاد کی ہیں, آج پڑھی ہیں, مسواک کی, تو آپ نے مسواک بھی شروع کرنی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.